Now I proceed to the next guest, Dr. Shayali Kulkarni ma'am. She is a neuropsychologist in Nagpur, India. She received IFNR Young Fellowship Award 2019 at IFNR Mumbai and have a specialization from NIMHANS Bangalore in neuropsychology and fellowship in epilepsy from Sri Chitra Trunal Institute, Trivandrum. She also received Gandhi Scholarship Award. She is working as a consultant psychologist in CIIMS Hospital, Nagpur since last 10 years, faculty in CME Neurology in Nagpur. She also running private clinic. She conducted various workshops on neuropsychology, mental health awareness program in Nagpur. Ma'am, please enlighten us on the neuropsychological evolution of patients of dementia. Over to you, ma'am. Yeah, thank you, Aarti. Thank you, ma'am. So, first of all, I would like to thank Dr. Purnima, Director, Niche Advocacy Foundation, for giving me this opportunity. Thank you so much, ma'am. We just got to know about dementia. हमारे ब्रेन के बारे में हमने जाना, मेमोरी के बारे में जाना. डॉक्टर चौहान told us about the types of dementia, dementia के लक्षण क्या होते हैं. हमने केयर गिवर के रोल के बारे में भी जाना. सो हियर मैं अभी आपको न्यूरोसाइकोलॉजी ऑफ डिमेंशिया यानी डिमेंशिया में न्यूरोसाइकोलॉजी का क्या रोल होता है, किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं हम पेशेंट्स को, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं. सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूरोसाइकोलॉजी, व्हाट इज न्यूरोसाइकोलॉजी. तो आप में से कई लोग शायद न्यूरोसाइकोलॉजी एक साइकोलॉजी की ब्रांच है, शायद जानते भी नहीं होंगे. सो न्यूरोसाइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज कंसर्न विथ हाउ द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स कॉग्निशन एंड बिहेवियर. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोफेशनल्स जो इस ब्रांच में होते हैं, दे फोकस ऑन हाउ द इंजुरीज or illnesses of the brain affect cognitive functions and behavior. So basically अगर हम देखें तो it is the study of relationship between behavior, emotion and cognition on one hand and the brain functions on the other. So it is a study of brain behavior relationship. So neuropsychologist क्या होता है? A neuropsychologist is a psychologist who specializes in understanding the relationship between the physical brain and behavior. तो behavioral impacts on physical brain study करते हैं neuropsychologist. So जैसे हम देखते हैं कि they administer the tests जिसमें they determine what is the impairment and they determine the degree of the impairment. किस severity से impairment है ये भी हमें जानकारी मिलती है. By the way, the neuropsychologist does the tests. Then they evaluate and treat conditions like जैसे हमने अभी जाना dementia, majorly all types of dementia, then epilepsy, stroke, then TBI, that is traumatic brain injury. ये सारी conditions generally neuropsychologist address करते हैं. They are important part of diagnostic process. तो वो बहुत major role play करते हैं diagnostic process में. Then they administer different types of tests. they are trained in administration of those tests. यानी अगर हम देखें कि उनको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलती है वो सारी टेस्ट एडमिनिस्टर करने के लिए, क्योंकि ये सारी स्टैंडर्डाइज टेस्ट होती है और उनकी जो प्रोसीजर रहती है फॉलो करने की, दोज आर ऑल्सो स्टैंडर्डाइज. सो मोस्टली दे आर ट्रेन्ड इनटू दिस एंड देन दे परफॉर्म दीज टेस्ट्स. They identify the pattern of loss of cognitive thinking and even address emotional conditions. So emotional conditions तो neuropsychologist है तो he has to handle all the neurological conditions as well as the emotional conditions also. So कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट अगर डिप्रेस्ड है, पेशेंट को अगर एंजाइटी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें यानी सारे इमोशनल फंक्शंस भी उसे एड्रेस करने पड़ते हैं, many a times by providing psychotherapy, counseling interventions, etc. Then the neuropsychologist also helps in developing treatment and intervention. जिस तरीके का टेस्टिंग होता है, जिस तरीके का एवैल्यूएशन होता है, उसके बाद जिस प्रकार की हमें प्रोफाइल मिलती है, उसके ऊपर कैसे इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज हम प्लान कर सकते हैं, इसके बारे में भी न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हमको बताते हैं.
जैसे आज टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिमेंशिया, तो जैसे हमने कुछ कंडीशंस जाने जो जो न्यूरोसाइकोलॉजिक्स एड्रेस करता है, उसमें से एक है डिमेंशिया। तो हमने अभी जाना कि डिमेंशिया इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट अफेक्ट्स मेमोरी, थिंकिंग एंड इंटरफियर्स विथ डेली लाइफ। तो हमारे जैसे मैम ने भी अभी हमें बताया कि हमारी डेली लाइफ यानी डेली रूटीन जब डिसरप्ट होता है कहीं ना कहीं, इसका इफेक्ट होने लगता है डेली रूटीन पे, तो हमें समझ में आता है कि शायद वो कोई प्रकार का डिमेंशिया है। So we can say that dementia is a broad umbrella term which describes a range of progressive neurological disorders. So जैसे हमने जाना कि काफी तरह के डिमेंशिया, काफी टाइप्स ऑफ डिमेंशिया हमने देखे, हमने सुने डॉक्टर चौहान से, और हर डिमेंशिया का अपना अपना एक पैटर्न है। अभी जैसे हमने जाना कि ये जो डिमेंशिया है ये हमारे सारे कॉग्निटिव एबिलिटीज अफेक्ट करता है, मेमोरी अफेक्ट करता है। तो कौन से एरियाज है या कौन से एक्टिविटीज है जो अफेक्ट होते हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द न्यूरोसाइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ डिमेंशिया? न्यूरोसाइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट इम्पैक्ट्स ऑन वाइड रेंज ऑफ डेली लिविंग एक्टिविटीज। जो हमारी रोज की चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे वो वर्सन होते जाता है, जैसे वो प्रोग्रेसिव होते जाता है, तो हम छोटी छोटी चीजें जैसे चाय बनाने के लिए, छोटी छोटी घर की जो चीजें उसके लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होने लगते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ डिमेंशिया, क्योंकि हर टाइप का अपना अपना एक डिफरेंट पैटर्न है। तो किस प्रकार का इम्पैक्ट आता है दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप। में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, एंड द caregivers are the best ones to understand this और screen this कि पेशेंट में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। देन लैंग्वेज, देन देयर आर विजुअल परसेप्चुअल, विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग, अवेयरनेस, कई बार पेशेंट को अवेयरनेस नहीं रहता है। देयर आर बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी चेंजेस जो हमें दिखते हैं, पेशेंट्स कई बार डिप्रेशन में जाते हैं, जैसे हमने जाना कि पेशेंट बहुत एजिटेट हो जाते हैं, देयर मेनी रीजंस बिहाइंड दैट, बट देन ये सारे पर्सनैलिटी चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस हमें दिखने लगते हैं इन द पेशेंट। देन ड्राइविंग, अगर हम डेली लिविंग एक्टिविटीज में देखें तो ड्राइविंग। देन अटेंशन ये बेसिक फंक्शन है, कोई भी चीज, जैसे हमारी मेमोरी हम रिटेन कैसे कर पाएंगे अगर हम अटेंटिव नहीं है। डिमेंशिया के पेशेंट को सस्टेन करने के लिए अटेंशन बहुत डिफिकल्टी होती है, ही इज अनेबल टू डू दैट। देन मोटर इम्पेयरमेंट, कई बार हम हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स भी देखते हैं पेशेंट्स में। देन स्लीप डिस्टर्बेंसेस आर ऑल्सो देयर। ये सारी चीजें, ये जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है डिमेंशिया पर, हम ये मेजर कैसे करते हैं? हाउ डू वी नो, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस इम्पैक्ट ऑन द ब्रेन इज थ्रू दिस न्यूरोसाइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। व्हाट इज न्यूरोसाइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन? It is an assessment of how one's brain functions, which indirectly yields information about the structural and functional integrity of your brain. So it involves an interview. So इसमें जो प्रोसीजर होता है कि उसमें पेशेंट का पहले डिटेल इंटरव्यू लिया जाता है, एंड देन द न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट एडमिनिस्टर्स द टेस्ट। सो इसमें जो टेस्ट होती है वो कई मोस्टली पेपर पेंसिल होती है, पर कई बार अभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी है जो पेशेंट पर एडमिनिस्टर की जाती है। ये जो इवैल्यूएशन होता है, जब न्यूरोलॉजिस्ट रेफर करता है पेशेंट को, तो कई बार उसका बेसिक स्क्रीनिंग किया जाता है। जब बेसिक स्क्रीनिंग में कुछ चीजें समझ में आती है तो देन द पेशेंट इज रेफर्ड फॉर अ डिटेल न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट। ये काफी डिटेल होता है और जिसमें काफी डोमेन स्पेसिफिक प्रोफाइल हमको मिल सकता है। एरियाज जो होते हैं, जो एरियाज कवर होते हैं ये इवैल्यूएशन में, क्या क्या चीजें इवैल्यूएट होती है, कौन सी चीजें इवैल्यूएशन में कवर होती है, वो हमें देखना है। जैसे अटेंशन स्पैन, मैंने बोला अटेंशन स्पैन और प्रोसेसिंग स्पीड। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको नाम बताती हूँ कुछ टेस्ट्स का, बिकॉज ये इतना ह्यूज और इतना वास्ट टॉपिक है कि हम यहाँ पे सारे टेस्ट प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, बट आई जस्ट मेंशन द नेम्स ऑफ सर्टेन टेस्ट। तो ये जो अटेंशन है उसके लिए हम लोग कई बार डिजिट स्पैन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड या विजिलेंस टेस्ट बोलते हैं सस्टेन्ड अटेंशन के लिए, जो हम करते हैं। फॉर दिस प्रोसेसिंग स्पीड कई हम लोग डिजिट सिंबल या ट्रेल मेकिंग टेस्ट होता है वो हम करते हैं। Then another area is basically cognition, so your ability to think, understand, learn and remember, ये सारी चीजें उसमें evaluate हो ही रही है हमारे neuropsych evaluation में। Then there is motor function, perception, problem solving and decision making, verbal ability, intellectual capacity, language, problem solving, reasoning। So इसमें सारे जो executive functions है उसके लिए भी एक set of tests है, जहाँ पे हम planning के लिए Tower of London एक टेस्ट है वो करते हैं। उसके बाद
विस्कॉन्सिन कार्ड सॉर्ट टेस्टिंग है वो हम करते हैं. सो ये सारी चीजें हैं जो हम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए यूज करते हैं. देन लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, विजुअल स्पेशल स्किल्स, बिहेवियरल फंक्शनिंग. तो बिहेवियरल फंक्शनिंग के लिए भी कुछ अलग टेस्ट है जो हम परफॉर्म करते हैं पेशेंट्स पर. सो अभी हमें बेसिक ये जानना है कि ये जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन है, डिमेंशिया में इसका क्या रोल है. सो हाउ इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द पेशेंट ऑफ डिमेंशिया. सो फर्स्ट दैट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस. सो ये जो कॉग्निटिव प्रोफाइल है that can help us, जो हमें टेस्टिंग के बाद एक प्रोफाइल मिलता है पेशेंट का, that can help us differentiate between normal aging from MCI, that is mild cognitive impairment, and neurodegenerative disorders from reversible causes of cognitive complaints, like example depression. तो कई बार पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट होता है with memory complaints, with difficulty in daily tasks, बट देन जब हम पूरा असेसमेंट होता है तो उसके बाद ध्यान में हमें ये चीज आती है कि पेशेंट इज बेसिकली डिप्रेस्ड. सो देयर इज लॉस ऑफ इंटरेस्ट इज एक्टिविटीज, विड्रॉन है पेशेंट, तो डेफिनेटली उसका अटेंशन, उसका मेमोरी या सारे कॉग्निटिव फंक्शंस आर बीइंग अफेक्टेड. सो ये जानने के लिए भी हमें ये टेस्टिंग या इवैल्यूएशन बहुत हेल्प करता है. देन लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्रेशन. सो कॉग्निटिव असेसमेंट कैन प्रोवाइड अ बेस लाइन टू ट्रैक प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज. प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज हम ट्रैक कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन और बिहेवियरल इंटरवेंशंस. तो ये भी हम जान सकते हैं ड्यूरिंग दिस टेस्टिंग. सो प्रेडिक्शन ऑफ कन्वर्जन टू डिमेंशिया. सो इम्पेयरमेंट्स हमें दिखती है कैन बी प्रेडिक्टिव बायोमार्कर्स ऑफ प्रोग्रेशन टू अल्जाइमर्स डिसीज और अदर टाइप्स ऑफ डिमेंशिया. तो हमें समझ सकता है कि किस तरीके का प्रोग्रेशन हो रहा है, या ये अल्जाइमर्स में कन्वर्ट हो रहा है. ये सारी चीजें हम थ्रू दिस टेस्टिंग जान सकते हैं. Function. So a thorough functional assessment can reveal areas of daily functioning where patient may need assistance, like medicines कब लेना है, remembering certain appointments. तो ये सारी चीजें हम जान सकते हैं. Competence. तो competence जब हम देखेंगे तो we can determine patient competence in areas such as वो ड्राइविंग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, मेडिकल, उसके बाद लीगल या फाइनेंशियल डिसीजंस वो ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे. सो कॉम्पिटेंस कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड थ्रू दीज टेस्टिंग्स. रिसर्च में भी दैट प्लेज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो क्वांटिफाइंग बिहेवियर एंड कॉग्निशन allows us to correlate the patient scores to structural and functional images of the brain, thereby providing insights into brain network involved in particular function. So जैसे हमने अभी जाना इसके बारे में कि डिमेंशिया में ये न्यूरोसाइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है या ये हमें क्या देता है. सो दे प्रोवाइड अस विद अ रिलायबल बेसलाइन. जैसे मैंने अभी कहा था कि वो हमें प्रोग्रेस ट्रैक करने में हेल्प करता है. उसके बाद प्रोवाइड यू with current strengths and weaknesses and can help family cope with the challenges. So अगर हम जाने कि पेशेंट की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, तो उस प्रकार से हम स्ट्रैटेजीज प्लान कर सकते हैं, हम इंटरवेंशंस प्लान कर सकते हैं, सो दैट केयर गिवर्स को जो स्ट्रेस होता है वो यहाँ हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन केयर गिवर मेंटल हेल्थ. सो जैसे सर ने अभी बताया कि केयर गिवर का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. केयर गिवर अगर खुद को ठीक रख पाते हैं तो ही वो पेशेंट की भी केयर उतने ही इफेक्टिवली ले पाएंगे, इसलिए इनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर मेंटल हेल्थ. लाइक उनके काउंसलिंग होते हैं, दे प्लान सर्टेन इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज दैट कैन हेल्प द केयर गिवर कोप विद द चैलेंजेस. देन असेसमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इन डिमेंशिया एंड ओल्डर एडल्ट्स. सो अ थॉरो, जैसे अभी हमने जाना कि थॉरो जो असेसमेंट कॉग्निटिव और फंक्शनल हम करते हैं उससे हमें समझ में आता है कि पेशेंट को कहाँ मदद या कहाँ हेल्प की ज़रूरत है, एंड इस प्रकार से हम इंटरवेंशन भी प्लान कर सकते हैं. और हम MCI में ये इवन द इवैल्यूएशन हमें माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट क्या है और डिमेंशिया कौन सा है ये भी जानने में थोड़ी जरूर हेल्प कर सकता है. तो ये जो टेस्टिंग होता है, जो टेस्ट्स हम यूज करते हैं ड्यूरिंग इवैल्यूएशन, न्यूरोसाइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए हम काफी डिफरेंट प्रकार के टेस्ट्स यूज करते हैं. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द, अगर हम देखें तो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज करता है टू असेस वेरियस कॉग्निटिव एबिलिटीज. जो हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज है उसे असेस करने के लिए एक सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, एंड द स्कोर्स आर इंटरप्रिटेड by comparing to proper norms. जो norms होते हैं उससे comparison होता है with similar demographic background like age, education और gender. ये देखकर comparison होता है, and then the accurate neuropsych interpretation requires a careful clinical evaluation and use of adequate tests and norms.
सो एडिक्वेट टेस्ट, कोई एक टेस्ट हमको रूल आउट नहीं करा सकता कि ये डिमेंशिया है, कौन से प्रकार का डिमेंशिया है. देयर नीड्स टू बी अ सेट ऑफ टेस्ट. सो चूजिंग टेस्ट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस, कि जहाँ पे न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डिफरेंट एरिया से टेस्ट चूज करता है और पेशेंट पे एडमिनिस्टर करता है. सो मैं जस्ट जनरल आपको कुछ एक 7-8 टेस्ट के नाम बताऊंगी जो जनरली किए जाते हैं पेशेंट पे. तो MMSE, जिसके बारे में मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, शायद कई लोगों ने आपने सुना होगा, जो एक 10 मिनट का टेस्ट है. कई बार क्लिनिशियंस भी वो एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट्स पर, जिसमें हमें बेसिक समझ में आ जाता है कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है या नहीं. उसके बाद द न्यूरोलॉजिस्ट और द क्लिनिशियन रियलाइजेस दैट इस पेशेंट को डिटेल असेसमेंट की जरूरत है या डिटेल इसका असेसमेंट होना चाहिए, वैल्यूएशन होना चाहिए. सो देन दे आर रेफर्ड टू न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट. देन कम्स मोका अनदर टेस्ट है. उसके बाद क्लिनिकल डिमेंशिया रेटिंग स्केल हम बोलते हैं, CDR, वो एक टेस्ट एडमिनिस्टर किया जाता है. देन ACE-3, दैट इज एडनब्रुक्स कॉग्निटिव एग्जामिनेशन. उसके बाद निम्हांस न्यूरोसाइकोलॉजी बैटरी के भी कुछ टेस्ट्स है जो कई बार यूज किए जाते हैं. सो इट्स अ मिक्स एंड मैच यूज करके वी फॉर्म अ बैटरी, वी फॉर्म अ सेट ऑफ टेस्ट एंड वी परफॉर्म देम. वेस, दैट इज वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल. सो अगर हम बिहेवियरल साइड में देखें तो न्यूरोसाइकेट्रिक इन्वेंट्री होती है, जीरियाट्रिक डिप्रेशन स्केल करते हैं, फ्रंटल असेसमेंट बैटरी भी किया जाता है. तो ये सारे टेस्ट्स हैं जिससे हम वी ट्राई टू असेस, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड गेट द कॉग्निटिव प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट. सो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा मिनी मेंटल स्टेटस एग्जाम, या दैट इज MMSE टेस्ट है, जिसमें ओरिएंटेशन के कुछ क्वेश्चंस है, रजिस्ट्रेशन है, देन अटेंशन एंड कैलकुलेशन है, रिकॉल. सो पेशेंट को कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, देन ही हैज टू रिकॉल दोज वर्ड्स. देन देयर इज लैंग्वेज, देन लैंग्वेज की कुछ है, देयर इज कॉपी, देयर इज द डिजाइन कॉपी करने के लिए. सो ये सारी चीजें मिनी मेंटल स्टेट एग्जाम में की जाती है, जिसमें हम देखते हैं, अगर हम देखें तो कट ऑफ इज 24 to 30. अगर हम देखें तो देयर इज नो इम्पेयरमेंट. 19 to 23 हम माइल्ड इम्पेयरमेंट बोलते हैं, एंड 10 to 18 मॉडरेट इम्पेयरमेंट है. तो ये जस्ट स्क्रीनिंग के लिए, बेसिक स्क्रीनिंग के लिए, कि जहाँ पे ये लोग जहाँ पे डॉक्टर्स को उतना समय नहीं मिल पाता है पूरा डिटेल असेसमेंट करने के लिए, तो तुरंत से टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके का कॉग्निटिव प्रोफाइल है, ये चीजें की जाती है. एंड देन डेफिनेटली देयर इज अ डोमेन स्पेसिफिक एंड अ डिटेल असेसमेंट दैट नीड्स टू बी डन विद द पेशेंट. सेम यहाँ पे मोका है, जिस टेस्ट के बारे में मैंने बताया आपको, मॉन्टेरियल कॉग्निटिव असेसमेंट. कई चीजों में इट इज फाउंड टू बी बेटर देन MMSE ऑल्सो. सो इसमें अगर हम देखें तो विजुअल्स, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी इंक्लूड किए गए हैं, तो ये दैट इज फॉलोइंग क्वाइट पॉपुलर, बेटर देन MMSE. तो ये टेस्ट भी काफी यूज हो रहा है. सो ये जनरल ये जो मैंने कहा आपको कि काफी सारे टेस्ट हैं, उसमें से एक जो हम बोलते हैं दैट इज अ फन काइंड ऑफ अ फन टेस्ट, कि स्ट्रूप टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, कि जिसमें रिस्पॉन्स इनहिबिशन देखते हैं हम पेशेंट का. तो यहाँ पे जैसे आप कुछ वर्ड्स देख रहे होंगे, दोज आर रिटन इन डिफरेंट कलर्स. तो हम इसमें ये करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट हैज टू रीड द वर्ड्स. सो पहले हम उसको रीड करते हैं, और उसके बाद देन वी टेल देम कि नाउ यू हैव टू टेल द कलर. उसके बाद उसको कलर में बोलना पड़ता है. तो जैसे अगर वर्ड्स हम बोले तो ग्रीन, ब्लू, येलो, अगर वर्टिकली देखे तो, बट अगर व्हेन दे हैव टू टेल द कलर, दैट वुड बी ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन. सो दिस इज अ स्ट्रूप टेस्ट जो किया जाता है पेशेंट्स पे कई बार. देन अभी मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ एक फिगर, यानी कॉम्प्लेक्स फिगर टेस्ट है, जो हम विजुअल स्पेशल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, कि जिसमें हम पेशेंट को ये फिगर देते हैं, एंड देन द पेशेंट हैज टू कॉपी दिस फिगर, और इसका रिकॉल भी प्लान किया जाता है. इसका रिकॉल के कुछ सेट ऑफ टाइमिंग्स है जो किए जाते हैं. सो दीज आर काइंड ऑफ सम टेस्ट जो मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की, जो मैं आपको दिखा सकती थी, वो टेस्ट है. अब अगर हम देखें तो ये जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट्स है, तो बहुत जरूरी है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लेना इस असेसमेंट में, दैट रिड्यूसेस द पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द असेसमेंट प्रोसेस. क्योंकि उसमें फिर ओवर इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स और मिसडायग्नोसिस हम अवॉइड कर सकते हैं, वो नहीं होता है. बिकॉज देयर आर मेनी रीजंस. जब पेशेंट टेस्टिंग करता है या टेस्ट परफॉर्म करता है, तो उसके पीछे काफी रीजंस होते हैं कि उसमें वो थोड़ा पुअर रहता है, या वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करता. तो इसके पीछे काफी रीजंस हो सकते हैं, जैसे पेशेंट इज नॉट क्वाइट मोटिवेटेड, फिजिकली वो बेटर फील नहीं कर रहा है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन या एंग्जाइटी,
एंजाइटी पेशेंट में रहती है ऑफ द आउटकम. सो कोई भी आता है सॉल्व करने के लिए कुछ भी, तो दे आर लाइक कि मैं पास होगा या मैं फेल होगा. उनके क्वेश्चंस रहते हैं बिकॉज दे हैव दिस एंजाइटी इन माइंड कि ये क्या हो रहा है, ये किस प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं. सो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट या न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉपर इवैल्यूएशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं पेशेंट को. ये समझने के लिए न्यूरोसाइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो ये जैसे मैम ने कहा कि ये टॉपिक बहुत वास्ट है, सो वी ट्राई टू जस्ट कवर इट इन सम फ्यू मिनट्स, आपके सामने रखने की कोशिश की. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. Thank you so much, ma'am, for enlightening us. You very well explained the topic in very lucid manners, like you defined all the test is. It's really very amazing.